Firstly, we will discuss the technique integration by substitution. Integration by parts. थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस टेक्निक दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. ਇਹਦੇ कुछ ट्रिक्स ने की रूल्स ने ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਐਫ ਐਕਸ ਨੂੰ. ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੀਂ ਟੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਪਿਆ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ. ਉਹ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ. ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ 2x, 1 ਦਾ 0, 2x ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਂ 2 ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਪਿਆ. ਨਾਓ ਪੁੱਟ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੀ. ਆ ਮੈਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵਿਚਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ. ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡ. ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x. ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ. ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਫੋਰਮ ਆਫ ਟੀ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ dt. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ dx ਵੀ ਕੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, dt 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2x dx, 2x ਅਤੇ dx ਆਹ ਇਕੱਠਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, dt ਦੇ. 2x ਅਤੇ dx ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ 2x ਅਤੇ dx ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਤਾ, ਅਤੇ 2x ਅਤੇ dx ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, dt. ਅਤੇ ਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ. ਆਹ ਰੂਟ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/2 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 dt. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਰੈਡੀ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ 1/2. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ. ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਆ ਜੂਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 1 2
ये क्या आ जाऊगा हुण इंटीग्रेशन सच हो चुकी है तो ब्रैकेट आऊगी। ठीक है जी। हुण जिहड़ा साडा आंसर आ उस इंटीग्रेशन का ओरिजिनल वेरीएबल च आना चाहिए। ओरिजिनल वेरीएबल मीनस जो साडी स्टेटमेंट ओरिजिनल वेरीएबल एक्स च सी तो मैनू एक्स च लैके आना। हुण जिथे पुट किया सी उहदे कोलों जाओ, टी की वैल्यू पुट कर दो। टी इन फॉर्म ऑफ एक्स की है एक्स स्केयर प्लस 1 तो मेरे इत्थे की आ जाऊगी एक्स स्केयर प्लस 1 दी पावर 3/2 दैट इज़ द आंसर। सॉरी एक गलती हो गई अपने को जो मैं इत्थे डेरीवेटिव किया सी 1/2 प्लस 1 नीचे भी तो प्लस 1 आना सी, यानी कि अगर ऊपर 3/2 पावर आई है नीचे भी कितनी आनी सी 3/2, इत्थे 2/3 इत्थे 1/3 आना बा। नाउ दिस वन इज़ द फाइनल आंसर। एक होर एग्जाम्पल डिस्कस कर लें सबस्टिट्यूशन वाली। हाँ जी नैक्सट देखो हुण असीं इह देखना इह भी मेरे किन्ने फंक्शन ने 2 फंक्शन ने किहड़ी फॉर्म च ने प्रोडक्ट फॉर्म च। अगर सानू प्रोडक्ट फॉर्म च आ जाते हैं फिर मैं सबस्टिट्यूशन बारे सोचूंगी। हले असीं सबस्टिट्यूशन का फर्स्ट रूल कर रहे हैं सॉरी टैक्नीक का फर्स्ट रूल सबस्टिट्यूशन कर रहे हैं टैक्नीक का फर्स्ट रूल। हुण सबस्टिट्यूशन च मैं किनू पुट करना जिहदा डेरीवेटिव अवेलेबल आ। वैसे कोस का डेरीवेटिव साइन अवेलेबल है बट फिर 1 प्रॉब्लम करूँ जे मैं ये पूरे का डेरीवेटिव चैक करा 1 का डेरीवेटिव तो 0 हो गया, साइन का डेरीवेटिव कॉस हो गया। मेरा डेरीवेटिव की बनना चाहिए साइन का डेरीवेटिव कॉस 6x नाल की आ 6 डेरीवेटिव च एक्स के कोफिशिएंट के नाल की हुंदी मल्टीप्लाई, मतलब ये अगे 6 होना चाहिए। ये अगे 6 बनाने लिए मैं अपने को 6 लगाता। ये तो चलो क्वेश्चन सी मैं आंसर च लगा देनी है। अपने को 6 लगाता। हुण मैथ विच अपने को असी जे कोई चीज़ लगाईए तो उन्होंने बैलेंस करने लिए असी की करांगे डिवाइड। हुण आ जाओ तुसी पुट ते सबस्टिट्यूशन ते आ जाओ। मैं पुट किनू किता 1 प्लस साइन 6x नू की पुट किया टी डी टी अपॉन डी एक्स 1 का डेरीवेटिव 0 साइन का डेरीवेटिव की आ कॉस 6x तो फिर इंटू डेरीवेटिव ऑफ थीटा 6x का की आ गया 6 डी एक्स इधर लै जाओ सैपरेट करते एक्स वाले एक साइड पे। ठीक है आ चीज़ आ गई। इत्थे देखो 6 कॉस एक्स डी एक्स मतलब इस चीज़ को रीअरेंज करके देखो 6 कॉस 6x ते डी एक्स आ चीज़ ते आ चीज़ इनू मैं इकट्ठी करती आ वाली मेरी रह गई सी। एक बार मैं गिवन स्टेटमेंट में रीअरेंज किया ताकि आ तुम डायरैक्ट पता लग जाए। इनू लिख दो फ्रोम जिन्हों पुट किया उन्होंने 1 लिख दो डी टी की वैल्यू 2 लिख दो फ्रोम 2 तो मैनू आ की है 1 एंड 2 दोनों। ये तो एक की वैल्यू है डी टी की एक की वैल्यू है रूट 1 प्लस साइन एक्स फ्रोम 1 टी की। फिर इनू डी टी हमेशा सानू इत्थे चंगा लगता। इतों इंटीग्रेशन कर लोगे तुसी टी की इंटीग्रेशन की आऊगी 1/2 रूट इंटीग्रेशन की आऊगी +1 वही 3/2 आ गई 1/6 पहला सी प्लस सी तुसी आंसर के नाल लिखना होंदा। दिस वन इज़ योर आंसर। बट फाइनल आंसर कदों आऊगा जो असी टी नू इन फॉर्म ऑफ एक्स लिख दिए। टी नू मैं इन फॉर्म ऑफ एक्स च की पुट किया 1 प्लस साइन 6x नू पुट किया। ठीक है जी। हाँ जी सबस्टिट्यूशन दी असी एक टेक्नीक तो पढ़ चुके हैं अगर डेरीवेटिव होदे नेबर दे विच होवे। सैकेंड टेक्नीक ये है अगर इंटीग्रेशन अपॉन दी फॉर्म च है एक डिनोमीनेटर है। अगर डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव न्यूमीनेटर च बन रहा जे नहीं भी बन रहा तो तुसी बनाना अपने को मल्टीप्लाई तो डिवाइड करके। अगर डिनोमीनेटर का डेरीवेटिव न्यूमीनेटर च अवेलेबल आ दैन असी सीधा यदि इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है लॉग ऑफ फंक्शन मतलब कि आ चीज़ का फॉर्मूला बेसिक ये है 1/x दी इंटीग्रेशन की होंगी है लॉग ऑफ एक्स। अगर किसी फंक्शन का डेरीवेटिव पहले चैक कर लो कि ऊपर पिया दैन असी उन्होंने भी लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। उस तो बिना फंक्शन के जिथे जिथे एक्स है एक्स के कोफिशिएंट नू डिवाइड करना जिमें आप डेरीवेटिव च मल्टीप्लाई करते सी। नहीं ये चीज़ की समझ लगी कट दो। फिर ये देखो कि अगर वह डेरीवेटिव ऊपर पिया
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਟੈਕਨੀਕ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਬਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡੀ ਐਕਸ ਵੀ ਡੀ ਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ फर्स्ट ही है 2x + 9x² + 9x + 30। देखो आह डिनोमीनेटर है, यदा डेरीवेटिव उपर पिया x² का 2x, 9x का 9, 30 का की है 0। सानू बनाने की लोड़ नहीं पई, इत्थे रेडीमेड मैनू डेरीवेटिव मिल रहा, तो असीं पुट कर देने नीचे वाले डिनोमीनेटर वाले फंक्शन नू टी, इनू नंबर 1 दे दो, इत्थे मेरा की सी dx। हुण डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू x, 2x + 9 dt/dx, 2x + 9 dx ते dt ते आ चीज़ इधर ले आओ, आप लोड़ नहीं। 2x + 9, 2x + 9 इंटू की है dx, जोड़ा मैं हाईलाइट किया इनू मैं की पुट कर सकती हाँ dt, फिर अपॉन जोड़े आ वाली चीज़ है इनू मैं की पुट कर सकती हाँ फ्रॉम 1 t, 1/t नू मैं की लिख सकती हाँ log t, आंसर इंटीग्रेशन का। फिर इंटीग्रेशन का आंसर ओरिजिनल वेरीएबल च आना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। फस्ट 2 एग्जाम्पल हो गई हैं, जी थर्ड एग्जाम्पल है ये तुम अपने आप करोगे। रूट वाली दे इंटीग्रेशन अगर रूट डिनोमीनेटर च आ जाए इनू रैशनाइजेशन कर दो, ठीक है। रैशनाइजेशन तो बाद यू कैन डू ईजली। फोर्थ हो चुकी, नैक्सट आप रूल डिस्कस करते हैं। नैक्सट थर्ड तकनीक की है साडी पुट करन दी सबस्टिट्यूशन च। अगर साइन ते कोस का प्रोडक्ट आ जाता उपर उन्होंने पावर्स ने, अगर साइन ते कोस का प्रोडक्ट आ जाता उपर उन्होंने पावर्स आ, ध्यान दिओ इत्थे साइन ते कोस ही होना चाहिए, उपर उन्होंने पावर्स कोई भी है। अगर तो इन्होंने दोनों के विचों जिहदी ईवन पावर होगी साइन दी या कोस दी, जिस टी रेशो की ईवन पावर होगी उन्होंने आप टी पुट कर लेना है। मान लो एन ईवन आ तो मैं पुट कॉस नूं करूँगी टी, विद पावर नहीं पुट करना, बस उस टी रेशो नूं जस्ट पुट करना। मान लो जे मेरी एम ईवन आ, एक ईवन आ एक ऑड आ, एम मेरी ईवन आ तो मैं पुट किनूं करूँगी साइन एक्स नूं टी, जिन्हों पुट करने तो बाद उही प्रोसीजर डिफरेंशिएट बोथ साइड सारी इक्वेशन नूं टी च कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। हुण जो भी ईवन आपां उहनूं पुट कर देना। अगर साडियां दोनों ही ऑड आ गई, ठीक है, आ भी ऑड आ ते आ भी ऑड आ, पुट तो असीं ईवन नूं करना सी। दैन असीं जिहड़ी वड्डी पावर ऑड दी होऊगी उहनूं असीं की पुट करांगे अगर ये भी ऑड आ ये भी ऑड आ, जिहड़ी सारे नाल वड्डी पावर होऊगी उहनूं आपां पुट करांगे। पुट हायर ऑड पावर टी, मान लो आ भी ऑड है आ भी ऑड है, तो असीं पुट किनूं करांगे जिहदी पावर वड्डी आ 5, मतलब साइन एक्स नूं पुट करांगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो साडी नैक्सट, इंटीग्रेट हुण इहदे विच्चों ईवन पावर नूं पुट करना। देखो एक कॉस है एक साइन आ, एक दी पावर ईवन है एक दी पावर ये ऑड है ये ईवन आ, जिहदी ईवन आ उस टी रेशो नूं मैं की पुट करता टी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, साइन का की बन गया कॉस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, आप डी एक्स उधर ले जाना हुंदा इज इक्वल टू डी टी। सारी स्टेटमेंट नूं चेंज कर दो,
cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ cos ਦੀ ਤੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ dt, sin x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਇੱਥੇ cos ਇੱਕ cos ਤਾਂ dx ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2। ਮੈਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ cos x ਤੇ dx ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰੋਮ 1 and 2 ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ 1 ਆ 2 ਆ। ਹੁਣ ਫਰੋਮ 1 and 2 cos x dx ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ dt ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ dt ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਈ। ਸਾਈਨ ਫਰੋਮ 1 ਆ ਸੀ 1, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ t ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, मैं तो इंटीग्रेशन उद तक नहीं कर सकती जब तक सेम वेरीएबल नहीं आता, यानी कि सारा टी नहीं आता। हुण टी मैं किनू पुट किया साइन नू, कॉस नू मैं टी च लिख सकती हाँ 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स टी दी पावर 4 डी टी। इत्थे हुण की आ जाऊगा ब्रैकेट 1, साइन दी वैल्यू की आ जाऊगी टी